Okay, hello, good morning, everyone. This is Ankit Tiwari with my teammates Ashu Prajapati, Jyoti Gidwani, Vyom Gupta, Harsh Duggad, Farman Khan, Shreyash Agrawal are going to present our case study on OYO creating effective spaces, functional area, marketing, as mentioned in our index. I would like to start with intro. Ankit, we had an idea about what OYO is and Ritesh Agrawal is. So introduction should be script to be very specific as far as presentation is concerned. So, but we prepare about. And no, we don't require that. Everyone is talking about Ritesh Agrawal and OYO, how it started. We are not interested of. Sir, but okay, sir. This is my points. Then my friend Ashu will Okay, continue, speak continue. nature of business. फैक्ट्स बता दो अंकित भाई फैक्ट्स बता दो इंट्रोडक्शन में Sir, हाँ चलो थोड़ा सा 1 मिनट ले लो यार, 1 मिनट में बता दो. okay, sir. Basically, Oyo Room is also known as Oyo Hotels and Homes. It's an Indian hospitality industry. Oyo Room is India's fastest growing branded hotel network. Uh, Mr. Ritesh Agrawal, entrepreneur, started it on 2013. He's also CEO of the company. Oyo started with one city in Gurgaon, and its headquarters also is in Gurgaon. The company serves more than 230 plus cities, and till 2017, Oyo has 67,000 plus rooms and 3,000 flagship and township rooms and 10,000 hotels under Oyo portfolio. Oyo doesn't own the hotel; it's acquire the hotel and tie up with hotel owners and registered under Oyo. Main key points. That's it, sir. Now, my friend, I should talk about nature of business. Nature and business. On Your Own, popularly known as OYO, is an Indian hospitality industry leased and franchise hotels, homes, and living spaces. Most of the demand is for budget room segment as people travel for leisures and business activities. So, but okay, sir. Wait, this is my part. Yes, sir. Sir, nature of business consists mainly market segment. There are two type of market segment: organized and unorganized segment. Organized is well, like जहाँ सब चीजें well organized हो, like वो तो मालूम है, वो तो वर्ड से ही मालूम हो जाता है. एक एग्जांपल बताओ ऑर्गेनाइज्ड. sir, like Hotel Taj, ITC, and all. These are organized sector in hospitality, like organized hotel. And Oyo targeted unorganized market, the budget hotel. सर उनने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक्चुअली टाई अप किया था. देयर आर 3 लाख प्लस ट्रेंड अंडर दिस स्कीम. सर लाइक वो उनकी ग्रूमिंग पे, लाइक बिकॉज दीज आर फ्रॉम रूरल एरियाज, तो सर उनकी ग्रूमिंग पे, उनके लाइक एटिकेट्स और ऑल पे उसने वर्क किया. ये स्टाफ Ashu ट्रेनिंग and की जिससे Jyoti, वो turn off your mic. अंकित बोलो. सर जिससे लाइक उसे भी उसकी स्किल्ड लेबर मिल जाए, लाइक बिकॉज पहले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था सर उसमें था, मतलब स्टाफ को कुछ ट्रेनिंग नहीं था. लाइक कुछ कस्टमर को कनेक्ट कर पा रहे हैं, लाइक कस्टमर से कनेक्शन बनाना, ये सब स्टाफ ट्रेनिंग के अंदर था. और बेसिक कम्युनिटीज में क्या था? सर बेसिक एक्टिविटीज लाइक उसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लाइक पूरा, सर लाइक वेल क्लीन रूम, सीए, एसी, वाईफाई, फ्री वाईफाई. marketing myself Vyom Gupta and marketing mix. Now marketing mix is a set of marketing tools which helps the firm to establish a marketing objective into a target market. It includes 4 P's. Firstly, price. Second, product. Third, place and promotion. Firstly, price. Pricing can be done by OYO on the basis of 2 methods. Firstly, minimum guarantee payment method. In minimum guarantee payment method, OYO gives the guarantee to the hotel owner that he will pay the fixed amount to the hotel owner whether the room is occupied or not. In later he changes in the model
And after changes, he launches a dynamic pricing model. In dynamic pricing model, it initially introduced in 2016. In this pricing model, OYO will pay amount to a hotel owner if the room is occupied. If the room is not occupied by a hotel owner, there will no amount will be paid by a hotel owner to hotel owner. In this pricing model, the prices can be measured by the market forces like demand and supply and the majority of transactions in that areas. In this pricing model, the prices are changes in every 4 hours. According to the case studies, by the end of 2016, the OYO start earning a revenue on 50% on booking of net discount. Second piece product. Basically, in OYO, there is a service industry, but in this case study, there are 3 types of products he used, like OYO rooms, OYO flagship, and OYO townhouse. OYO rooms. Basically, OYO introduced OYO room initially to target the budgeted customers. In this OYO room, it provides all basic amenities like cleaning toilets, free Wi-Fi, AC, free Wi-Fi, free breakfast, etc. In OYO rooms, it price will fluctuate rupees $23 to $30 according to Exhibit 12, and Exhibit 12 is also says that OYO having a 67,000 rooms and also they were fully managed, but it is not a leasing model. According to in second point is OYO flagship. In OYO flagship, OYO will target the customer which wants more comfort and more quality rooms. It gives in OYO flagship it gives a mini bar, it gives a mini infrastructure and tea and coffee stations, etc. In this OYO flagship, the OYO prices is varied from $30 to $50. And then last is OYO townhouse. In OYO townhouse, OYO targeted the millennials and the business people in this townhouse. Through this townhouse, it's provide premium accounts and all basic amenities like Netflix account, premium shower, etc. And premium in OYO townhouse is localized in hyper localized cities in the non-registered areas. Now Jyoti will continue. Third marketing mix tool is Place. OYO started from a single hotel in Gurgaon, Haryana, where is the headquarter in this. It started from Gurgaon, Haryana, and has extended its empire in all parts of the country. It now in 2020. In 2017, it serves around 230 plus cities with 10,000 hotels, 67,000 OYO rooms, and 3,000 OYO flagship and townhouse rooms. We can book OYO rooms online through OYO app and can avail the services by reaching the hotel on specified date. And the last marketing mix tool adopted by OYO is promotion. OYO earlier used to list their hotels on the other website like makemytrip.com, etc. So they first introduced their own website and apps to reach out the mass audience and can convey better about their goals. And एक मिनट अभी आपने बोला कि मास मार्केटिंग में I could not connect with what you are telling and what is mass marketing. आपने वैसे बोला कि OYO went through this MMT, Make My Trip. Then they made their own website. ये कहाँ लिखा हुआ in this case? सर ये वो इसमें लिखा हुआ था कि कॉम्पिटिटर्स मेक माई ट्रिप थे, उसमें पहले लिस्ट करते थे, ये ओयो अपने होटल्स जो थे वो लिस्ट करता था मेक माई ट्रिप थे, फिर उस कस्टमर्स उसके थ्रू करते थे। लेकिन ओयो ने अपना खुद की वेबसाइट बनाई और ऐप बनाया ताकि जो कस्टमर्स हैं वो खुद अपने ओयो की वेबसाइट के थ्रू होटल्स बुक करें और ताकि ज्यादा प्रमोट हो ओयो का ब्रांड। What was mass marketing into this? Mass marketing क्या था इसमें? सर मास मार्केटिंग मींस कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रीच हो। हमने मास मार्केटिंग के लिए मेनली कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे और क्या चाहिए, जो एक
पहला नहीं, टीवी और क्या चाहिए इज देयर इन दिस केस? सर इन दिस केस और क्या चाहिए, कैंपेन टीवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन था जिस जी इस केस में कहीं मेंशन्ड है और क्या चाहिए? यस सर मेंशन है ओयो रूम्स के अंडर, जब जहाँ ओयो रूम्स एक्सप्लेन्ड हुआ है उसकी उसमें ही मेंशन्ड है sir. Mainly in promotion Oyo prefers to promote as they introduce their own website and apps so that so that it's easy for their customers to book hotels online and can know more about Oyo. Then they focuses on organizing various type of campaigns like Aur Kya Chahiye, which was the TV advertisement campaign. In this, they mainly want to convey about the affordability, accessibility, and predictability goals of the Oyo. Sir, in this ranking, the Oyo adopted a ranking method. In this, various factors were considered for ranking any hotel on the Oyo app. First is the location. If any hotel is readily available, easily available to the customers, then it is listed at the top of the list. Then second was the Oyo audit feedback. They use app called Krypton app, जिससे सर उनने ऐप यूज किया था क्रिप्टन ऐप, जिससे वो जो ऑडिटर्स थे वो अपना फीडबैक देते थे कि वो कस्टमर्स कैसे हैं, तो उस बेसिस पे भी होटल्स को लिस्ट किया जाता था कि जैसे कोई जिसका फीडबैक ज्यादा अच्छा था, मतलब जिसके ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स थे उसको फर्स्ट पे फीडबैक किया जाता। और जो ओयो ऐप था उस पे ओयो ऐप जो कस्टमर्स के लिए किया गया था, तो वो कस्टमर रिव्यूज भी देखे जाते थे होटल्स को पहले लिस्ट करने से पहले, ताकि कि जो कस्टमर्स जैसे जिसको 4 और 5 स्टार्स देते थे उस पे ओयो ऐप पे, तो उसको फर्स्ट रैंक किया जाता था, फिर बाकियों को उसके अकॉर्डिंग किया जाता था। और सर अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, मतलब कि फोर्थ फैक्टर ये था कि अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स। अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स मतलब कि दिस होटल्स की इजीली अवेलेबल है रूम्स, मतलब जो हम रूम्स चाह रहे हैं वो अवेलेबल है। और वो सारे सर्विसेज ओयो जो क्लेम कर रहा है कि जो उसके 5 प्रोमिसेस थे वो सारे अवेलेबल हैं कि नहीं उस सर्विसेज। सर इन ऑडिट में वो क्रिप्टन ऐप के यूज करते थे। क्रिप्टन ऐप क्या था कि वो जो क्रिप्टन ऐप में वो जो मतलब मैनेजर था वो ऑडिट करता था, मतलब हर रूम्स में सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं। तो उनने कलर बेसिस पे मतलब मेनली वो किया था कि जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्डाइज रूम है उनको ग्रीन कलर दिया गया था, और जो नॉन ओयो जो स्टैंडर्डाइज रूम है लेकिन ओयो के रूम्स नहीं है उसको येलो कलर दिया गया था। और जो रूम जो ओयो के प्रोमिसेस थे वो लैक करते थे, मतलब जो सर्विसेज अच्छे नहीं थे उनको ब्लैक कलर दिया गया था। तो इस बेसिस पे क्या था कि ओयो को वो ऐप जो ओयो का ऐप था उस बेसिस पे ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक वो रूम्स डिसाइड किए जाते थे और उसके अकॉर्डिंग वो दिए जाते थे कस्टमर्स को, और वो उसके अकॉर्डिंग ही बुक किए जाते थे। Okay, sir. Sir, problem faced by Oyo. There are many challenges from Oyo rooms based on the hotels. There are mainly 5 problems which is faced by the Oyo. First, standardization. Extra heavy investment, leasing extra properties, remodeling that are also handling daily operations to required. Because sir, in minimum budget they give the more facility. That's why they are facing a problem on standardization. Second, variability. There was huge variability in the quality of budget hotels. Third, unreliability. There was a huge deficit in the mind of the traveler. He don't even get what he saw online. Fourth is unskilled staff. So because in less budget they get a unskilled staff. The hotel staff or budget hotel are at the bottom of skill set because of the rural background, poor educated and lack of exposure staffs. And fifth is maintenance. And that they are how to ensure that the quality of service is delivered to the customers. And
That's it. नहीं, ये समझ में नहीं आया। मेंटेनेंस और स्टैंडर्डाइजेशन को थोड़ा समझाओ, दोनों को डिफरेंशिएट करो। what we understand by standardization, what we understand by maintenance. Sir, on standardization, sir, they सर कम बजट में अच्छा स्टैंडर्ड रखना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये, क्योंकि सर जो होटल्स वो लीज में ले रहे थे उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था, उसमें सब चीजें स्टैंडर्डाइज्ड करना और इन ए मिनिमम बजट, तो सर दे आर फेसिंग ए ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस। मेंटेन सर आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन टू मेंटेन, मतलब सर बाद में भी इस चीज को मेंटेन करके रखना, इतनी फैसिलिटी दे दी उसके बाद उस चीज को मेंटेन करना, उसमें भी सर ह्यूज अमाउंट विल कवर्ड। सो सर basically this is not a problem faced by you, it was the problem faced in the industry. The industry was having these challenges, these issues basically. It's not only faced by you, the whole of the industry was having. Next slide. So first factor is political factor. Growing disposable income and the rise of millennials are making the OYO rapidly adopt various tools, technology. Arman, the question is why you apply this particular test? सर सर एक्सटर्नल फैक्टर्स देख के अप्लाई करा था सर कि इकोनॉमिक्स फैक्टर, इकोनॉमिक में और सोशल में और टेक्नोलॉजी में क्या क्या अपडेट्स आए हैं उसके रिलेटेड सर, इसलिए पेस्ट एनालिसिस सर अप्लाई करा था। If you want to apply any test, there must be a specific reason that why we are applying this particular test to this situation. सर ये Is there any, yes sir, is there any political, social, technological issue that you are identifying of, and then you are applying this particular yes sir, model? yes sir. First is her economic factor. How economic? Sir, in increase in the disposable income of the India, growing middle class, and the spread of low-cost airlines, there would be increase in the booking of hotels. That's the first factor in economic factor. Also, a second point is due to increase in startup like OYO in recent year, it attract many investors within or from outside the country, keep rising. Example, SoftBank, who invested 200 millions in OYO industries. So this was, and the social factor, and then the social factor. OYO room has a budget hotels in which are generally used by the middle class people, which increase travel for leisure, business, and pilgrimage. So, sir, the main factor is affected by the affected in social factor is lack of trust. There was a problem of trust in staying at a stranger house in India because of this middle class Indian and traveler prefer to go to those places where their relatives are staying and avoiding other places. And the third factor that affecting the social factor is lack of standardization. Before the existence of the OYO, a small medium hospitalization industry are not fulfilling the customer basic amenities such as poor infrastructure, lack of cleanliness, and ungroomed staff. Okay, so sir, technological factor. The reason why technology have updated every technology is keep on developing, which has great impact to OYO. Trend use of internet OTA for hotels booking, such as website sold hotel rooms on their proprietary platforms. After that, OYO introduced mobile application in Android and iOS platform for the booking of the hotels. Through this app, customer can book hotels in just 2 clicks. OYO have another app named Krypton. OYO mobile audit app enable OYO Capital Manager to audit properties and assure excellent customer experience with Krypton. A single through this app, Captain be able to manage the audit of 300 rooms while improving the customer experience. At the same time, there is also another app called Mitra used by the agent. Farman, hold on. Yes, sir. Yes, चलो sir. आपने बता दिया, कोई बात नहीं. Yes, sir. But see, I'm talking about this particularly pest bolo, Yes, pestle sir. bolo, steep bolo. Actually, steep is the first, you can say, the tool of external of analyzing the external environment.
स्टीप sir. के ऊपर ही पेस्ट बना, पेस्टेल बना, ये सब ही है ना, स्टीप Yes, इज sir. basic foundation. And where to use this tool? See, when we, अगर हमको धंधा करना है, say I am Walmart, है ना, Yes. मैं Walmart, मैं यूएस में हूँ, मैं चाइना में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, Yes, अब sir. मुझे इंडिया में आना है, Hmm. तो अगर इंडिया में आने से पहले सबसे पहले we do the analysis of the environment, Ye- whether this environment is conducive to our business or not. Ye- तो ये धंधे में घुसने से पहले ये पेस्ट बोलो, स्टीप बोलो, पेस्टल बोलो, ये एनालिसिस किया जाता है. तो यहाँ तो केस है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू Yes, sir. अंडरस्टैंड व्हिच टूल्स टू बी यूज्ड. यहाँ जो केस है, ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है. Yes, sir. एक बिजनेस है जहाँ के ऑलरेडी ये जो केस है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस केस, इट इज बिटवीन से 2013-14 से 2007. Yes, sir. 18 तक है. Yes, sir. And Oyo is already an established business. Yes, तो sir. अभी इसको टेस्ट नहीं करने का. अगर Okay, sir. ओयो मान लो चाइना में जाता है, ओयो मान लो हंगेरी में जाता है, यूरोप में जाता है, तो उस जगह का वो टेस्ट करेगा. Okay, तो sir. यहाँ पे ये टूल, चलो ठीक है, आपने अप्लाई किया, वो मैं उससे कोई सर कुछ ओके सर समझ रहा हूँ बट मैंने कुछ ऐसे फैक्टर्स. Ashish sir and Farman, let me add something. Yes, sir. Okay, your group is having people from various, domains of learning. Some are from science, arts. Yes, sir. है ना? This is possible. So what we are looking at is, are you sticking to the case? Okay, stick to the case. What Yes, has been given from here is only the case. So what Okay, you sir. have to do is stay within the case. That is what the objective is. ओके आप सर. लोगों का जब वो केस हुआ था तो सुजॉय सर ने बोला भी था ना कि केस के अंदर नहीं रहने के लिए. तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट पेस्ट कहाँ पे यूज करता है, आई होप थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पे करना है. यस सर बिल्कुल. कम नेक्स्ट स्लाइड बताओ. You continue, Farman, you continue this next slide also. Business Okay, model. sir. Okay, sir. The first point is key activity platform. Oyo has itself own app from booking as well as from auditing, and Oyo also available app of. No, this is मेरे सामने business model खुला हुआ है. सर बिजनेस मॉड्यूल बताऊं सर. की एक्टिविटीज बता रहा था बिजनेस. अच्छा ठीक है, ओके फाइन. So Oyo has itself own app for the booking as well as for auditing, and Oyo also available on a website as well. Partnership. Oyo is a partner with hotel vendors and with event planners, sales and marketing. Oyo use technology for the marketing through various platforms to provide and promote his business. Key resources. Employ with technical knowledge. Oyo have technology specialists who audit and maintain each every moment of the hotels and about customer experience. Venture funding. After success of Oyo, many company invested in it like SoftBank. So third point is customer segment of Oyo. Adventure, leisure, family, business. Farman, Yes, sir. just explain that revenue वाला जो हेड के अंदर में जो 2 पॉइंट लिखा है उसको बस खाली एक्सप्लेन कर दो. Okay, advertisement on web. It by giving advertisement on web portal of various product and services, and it can use revenue. It also earn revenue from service given to customers if by providing hotel rooms it in it through sponsorship and partnership. Oyo will earn the commission of the. See, you are talking about the business model. उसमें मैंने बोला रेवेन्यू स्ट्रीम बताओ, रेवेन्यू पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आता है, नॉट आएगा, आता कहाँ से है सर. पैसा कहाँ से आता है सर तो फर्स्ट तो इन्वेस्टर के थ्रू आता है सर पैसा, और स्पॉन्सरशिप के थ्रू. यस सर. रेवेन्यू इन्वेस्टर से रेवेन्यू नहीं आता है,
अपना इन्वेस्टर कैपिटल आता है धंधा चलाने के लिए, Yes, sir. बढ़ाने Yes, के sir. लिए। I'm talking about revenue. Sir, through advertisement. Where it is written, कहीं पे है एडवर्टाइजमेंट में उनको इतना पैसा मिलता है? कहीं है? See, when you put this business model ना, तो थोड़ा ध्यान से थोड़ा पढ़ उड़ के कहीं पे कुछ पढ़ के ना फिर उसके बाद डाला करो। बेसिकली दिस रेवेन्यू मीन्स धंधे जो हम माल बेचेंगे, जो सर्विस बेचेंगे, उसके थ्रू जो आमदनी होगा, द वर्ड आमदनी, रेवेन्यू मीन्स आमदनी। Yes, sir. आमदनी कहाँ से आ रहा है मुझे? तो यहाँ पे आमदनी के लिए 2-3 चीज है। इफ यू हैव गॉन थ्रू द केस, यू कुड हैव नोन कि बिजनेस मॉडल 1 का एक आमदनी का तरीका है। Yes, sir. Aggregate model और franchise model. नाउ आई थिंक, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है। Yes, sir. Aggregate model के through, sir. What it is written there, अब देखो एडवर्टाइजमेंट ऑन वेब पोर्टल, ये कहीं Yes, पे भी sir. नहीं है। Yes, sir, sir. Sir, through yes, sir. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। एनीवन? श्रेयांश एंड आशु प्रजापति। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे। Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड। Who is going to talk about recommendation out of this Ashu and Shreyansh के बीच में? Sir, may I? आशु आप बताओ। Yes, sir. Ashu, you are there? Ashu, you Yes, sir. talk about this recommendation. Sir, OYO will definitely increase inventory of hotel rating above 4 and 5 star hotels. This will How? increase their revenue. How? On what basis you are telling? क्या है तुम्हारा बेसिस बोलने का, ये रिकमेंड करने का? सारा खेल बजट वाला सेगमेंट पे हो रहा है, तुम 4 और 5 सितारा होटल पे जा रहे हो यार। What is the basis of giving such a recommendation? I accept your basically, recommendation. sir, Accept करता हूँ, लेकिन basis बताओ। Sir, the 4 and 5 star hotels generally the average rate. व्योम अपना म्यूट कर दो जरा, व्योम म्यूट कर दो थोड़ा। आशु बोलिए। सर, जो बजट रेट होटल्स होते हैं, Yes, सर, sir. उनका एवरेज रेट ऑफ रूम का जो अपने को रेट होता है सर, वो 1600 अराउंड 1600 रहता है पर रूम। और जो सर हाई रेटिंग होटल्स रहती है, वो जनरली सर अराउंड 6 to 5000 पर रूम जो रहता है। तो सर जो डिफरेंस है वो क्रिएट करेगा उनको। नहीं तो व्हाट इज द, मतलब यू आर रिकमेंडिंग समथिंग वेरी न्यू। ये पूरा खेल है बजट वाला सेगमेंट पे खेलने का, एंड यू आर टेलिंग टू चार्ज देम हाई, एंड दैट टू विद दीस टाइप ऑफ होटल रूम्स जहां पे ओनली बेसिक एमिनिटीज रहता है। हु इज गोइंग टू पे 6500 रुपीज? सर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी बात हुई थी, ओवरऑलिंग ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रूम्स की, तो सर उसमें इसी चीज पर काम किया गया था कि जो सारे जो होटल्स रूम्स हैं, उनके जो बेसिक एमिनिटीज है उनको और अच्छे लेवल पर स्टैब्लिश करे, ताकि जो सेगमेंट हम लैग कर रहे हैं, जैसे कि हम सर बजट रूम से फोकस थे सर, तो जो 4 रेटिंग्स और 5 रेटिंग्स की जो होटल्स थी, तो वो सब छूट रही थी। तो सर इसीलिए ये रिकमेंडेशन दिया गया है। सेकंड बताओ। हाँ सर, collaboration with construction company to reduce the cost of renovation. सर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने से उनका ये फायदा होगा, उन्हें खुद जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी रूम्स हैं, जो होटल्स हैं, वो खुद स्टैब्लिश नहीं करना पड़ेगा। दे विल जस्ट पास ऑन दी वर्क टू देम। तो पैसा तो देना पड़ेगा ना यार, वर्क पास ऑन करने के बाद पैसा भी तो देना पड़ेगा। सर, in this matter, just we are focusing on the renovation of the hotel industry, ना? We are not just focusing on the investment criteria. नहीं, आपने पॉइंट सेकंड क्या लिखा है?
Sir, collaboration of construction companies with Oyo for हाँ. renovation. और to reduce the renovation. cost of renovation. Cost How? of- किस तरह से होगा? सर जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं तो उनको जो कंस्ट्रक्शन जो रिनोवेट करना रहता है तो वो उस चीज को अच्छे से करती है क्योंकि वो उनका कोर एरिया रहता है, कोर काम रहता है सर. प्राइमरी दे फोकस ऑन दैट एरिया. और जो सर ओयो है तो ओयो इट इज जस्ट अ एप्लीकेशन बेस्ड इंडस्ट्री ना. वो उसका जो काम है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइड करने का है सर. केस पढ़ा था? हाँ सर. कितने बार? सर ओनली सिंगल टाइम. जरा वो हार्ड कॉपी बताना, थोड़ा दिखाओ मुझे. सर आई एम हैविंग ऑन माय फोन, आई कैन रीड इट आउट. अच्छा, वेरी गुड. ठीक ठीक ठीक. थर्ड वाला बताओ. tie up with airline companies. Sir, if they tie up with airline companies, they will basically generate huge profits, sir. Sir, as How? कैसे? sir बता रहा हूँ. Sir, as the airline companies जब वो collaborate करेंगे एक दूसरे के साथ तो सर वो tie up करेंगे. जैसे if they book for airline companies, they will tie up with Oyo. ठीक है, और आगे बताइए. हाँ सर, जहाँ पर जो कंट्रीज में जिन स्टेट में जिनका ओयो का आउटलेट नहीं है तो वहाँ पे डेवलप करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहाँ पे अपना फ्यूचर एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए वहाँ पे एक्सपेंड करेंगे एशिया एंड यूरोप कंट्रीज में. कहाँ एंड सर लास्टली सर वो कॉर्पोरेट. एक मिनट. कहाँ करना चाहिए? सर लाइक in China, sir, they are having major share in China. Sir, if they are already existing in China, यार. Sir, I'm that. You are telling expanding to in countries. कहाँ करना चाहिए in Asia and Europe? Sir, like tourism places like in Sri Lanka and those underdeveloping countries like. ठीक है. फरमान, you are there? Yes, sir. फरमान, अभी this person क्या नाम है? आशु. He told एक फोर्थ पॉइंट आपने लिखा है एक्सपैंड टू अदर कंट्रीज. ठीक है, तो उसमें श्रीलंका इसने बताया. श्रीलंका में अब यहाँ पे आप श्रीलंका का पेस्ट अगर लगाते हैं देन यू कुड हैव रिकमेंड कि श्रीलंका में जाना चाहिए क्योंकि द एटमोस्फियर इज एक्चुअली वेरी फेवरेबल इन बिजनेस. वहां पे व्हेन यू डू दोस पेस्ट ना तो अल्टीमेटली पेस्ट में जैसा पी है पीएमए फैक्टर्स लिस्ट करोगे फिर उसमें बताओगे फेवरेबल अनफेवरेबल. सेम विद अदर फैक्टर्स आल्सो. लास्ट में बताओगे फेवरेबल अनफेवरेबल. मैक्सिमम फेवरेबल होगा तो उस कंट्री में हम जाएंगे धंधा करेंगे. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू. टेस्ट कहां पे लगेगा. ओके सर. एंड नाउ आशु इज टेलिंग कि जब मैंने क्रॉस क्वेश्चन चालू किया तो कहीं पे भी पहले चाइना बोला. चाइना में तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. आई एम नॉट स्पीकिंग. Yes, sir, I am China में already है. चाइना सर मैंने चाइना का बताया था कि उसको छोड़कर जहाँ पे जो लैकिंग कंट्रीज है वहां पर फोकस करें सर. मेरा बात समझो. अगर तुम इसको पेस्ट के साथ जोड़ के करते ना तो मैं तुम्हें अभी तुरंत का तुरंत 12 नंबर दे देता अगर पेस्ट के साथ करके देते तो मुझे. दिस इज व्हाट टूल्स आर रिक्वायर्ड. हाँ, इस कंट्री में जाएंगे, इस कंट्री में जाएंगे, कोई भी कंट्री उठा लो यार, ज्यादा सोचना नहीं है. What I would like to see is that whether you are aware of this tool, कहाँ पे क्या लगेगा और कब लगेगा. तो ये जगह पे लग जाता है. जब आप रिकमेंडेशन कर रहे हो तो ये रिकमेंडेशन वो पेस्ट से आना चाहिए था. चलो, टॉक अबाउट दोस फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज द कॉर्पोरेट टाइप्स. सर कॉर्पोरेट टाइप से इंक्रीज करने से सर जो आउटसाइड द कंट्री से जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जो भी पर्सन्स आते हैं सर, if they tie up with those corporate persons, they will basically generate the huge profit in the market. सर वो सारे सब रूम्स बुक्स हो जाएंगे बिजनेस एक्टिविटीज होने से. ओके, चलो ठीक है. देयर इज वन पर्सन स्टिल रिमेनिंग, श्रेयांश अग्रवाल. यस सर. श्रेयांश अग्रवाल, कैन यू टेल मी. चलो मैं तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चन कर लेता हूं.
Can you tell me the difference between model 1 and model 2? What is the Yeah, basic difference? सर मॉडल 1 था वो पूरा का पूरा बजट सेगमेंट कस्टमर्स के ऊपर था। वो जिसमें अपन होटल्स से ओयो टाइप्स करता था और जितनी भी बची हुई इन्वेंट्री उनकी होती थी वो उनको परमानेंट मतलब फिक्स्ड अमाउंट देता था उसके लिए पर मंथ। फिर वो मॉडल 2 पे शिफ्ट हुए जब उनको लगा कि नहीं, हम लोगों को अपनी क्वालिटी अपने स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करने की जरूरत है और प्राइसिंग भी बदलने की जरूरत है। तो सर उन्होंने मॉडल 2 चूज किया उसके बाद, जिसमें उन लोगों ने फ्लैगशिप, टाउन हाउस और ओयो रूम्स ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ओयो रूम्स बेसिकली बजट ट्रैवलर के लिए था। फ्लैगशिप जो था वो थोड़े प्रीमियम कस्टमर्स के लिए था, जो ओयो रूम्स में जिनको सर्विसेज थोड़ी कम लग रही हैं वो फ्लैगशिप में रुक सकते थे। और बेसिकली थर्ड जो टाउन हाउस था वो 25% कैफे, 25% होटल, 25% प्लेइंग एरिया, 25% कैफे। तो बेसिकली उन लोगों ने एक टाउन हाउस जो बनाया था वो बिजनेस सर्विस, मतलब वो बहुत ज्यादा था जो कि बेसिक आदमी की नेसेसिटी थी। अच्छा, तुम्हारे पास कॉपी है? हाँ सर, मेरे पास कॉपी है। एग्जिबिट 16 समझाओ थोड़ा हमको। श्योर सर। सो सर एग्जिबिट 16 में यहाँ पे फ्लैगशिप और टाउन हाउस के बारे में यूनिट की बात हो रही है, पर यूनिट की जो इकोनॉमिक्स रहेगी उसके ऊपर। सो सर एवरेज नंबर ऑफ रूम्स पर प्रॉपर्टी इज 40। सो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं फ्लैगशिप और टाउन हाउस के अंदर, उसमें जो एवरेज नंबर है रूम्स के वो 40 है। सो सर इसमें मैं आपको कौन सा बेसिक पार्ट, मतलब स्पेसिफिक कुछ समझाऊं या फिर पूरा ही समझाना है? पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा समझाओ। श्योर श्योर सर। सर एवरेज नंबर ऑफ रूम्स मैंने आपको बता ही दिया। फिर एवरेज मंथली ऑक्यूपेंसी कि कितने लोग वहां पे मंथली बेसिस पे रहने आ रहे हैं, परसेंट बेसिस पे। फिर उनका एवरेज रूम रेट $34 जो था वो टाउन हाउस और फ्लैगशिप का मिला के वो एवरेज रेट निकाला था उन्होंने। फिर उसके बाद वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रूम ऑन अपग्रेडेशन। तो सर ये जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो कि ओयो और होटल ओनर दोनों मिला के जो उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। बोलो 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 सर ये बेसिकली 3 उसमें डिवाइडेड था, ओयो में और होटल का जो ओनर है उसमें और थर्ड पार्टी जो फाइनेंशियर है उसमें। सो उन लोगों ने 33% पे डिवाइड कर रखा है। 1/3 शेयर तीनों लोग देते थे जितना भी वो आता था, और जो उसका इंटरेस्ट रेट था वो था 15%। उसके बाद सर फिर पार्टनर्स इकोनॉमिक्स लीज इनकम फ्रॉम ओयो। सर जो ओयो के पार्टनर होटल्स होते थे उन लोगों को ओयो से कितना इनकम लीज में, मतलब ओयो उनको कितना देता था जब वो लीज लेता था उनसे। तो सर $7,385 का उनका अग्रीमेंट साइन होता था लीज का, जो कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए रहता होगा, लेकिन यहाँ पे ईयर लिखा नहीं है, सो आई कांट टेल दैट आंसर। फिर उसके बाद ओयोज मंथली इकोनॉमिक्स में मंथली रूम रेवेन्यू पर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सर इसमें ये फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें आप मेरे को मैं सब समझा सकता हूँ अगर आप, इफ वी हैव मोर टाइम। समझाओ ना, समझाओ मुझे एक चीज समझा दो। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 11,433। यस सर। है ना? हाँ हाँ। टैट की बात कर रहा है। टैट इज 11,433। हाँ हाँ। ये 11,433 कब आएगा? मेन 3 पॉइंट्स बता दो मुझे, कब आएगा मेन 3 पॉइंट्स? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कब आएगा? बिल्कुल सर। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे पहले तो पूरी की पूरी उनका रेवेन्यू निकाला जाएगा कि उनका पूरा कितना रेवेन्यू आया है टोटल उससे। उसके बाद उस ईयर का जो रेवेन्यू आया है उस ईयर की जो कॉस्ट आई है। अब जैसे होल्ड ऑन यस सर, मैं पूछ रहा हूँ 11,433 जो है जो भी है US डॉलर है या जो भी है, ये प्रॉफिट कब आएगा? इसका 3 मेन पॉइंट्स बताओ कि ये होने से ये प्रॉफिट आएगा, ऐसा 3 पॉइंट्स बताओ।
ये 3 होने से सर प्रॉफिट तो आएगा ही ना सर। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 11,433 जो पैट जो आएगा ये कब आएगा? एनी थ्री मेन फैक्टर्स ये होने से ये 11,433 आएगा। अब सर मैं एक्चुअली आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया कि आप किस तरीके से आपने सर, मैं फ्रेमिंग समझ नहीं पाया आपके क्वेश्चन की। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आएगा ही, पहले टैक्स हटा लिया आपने तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। 11,433 प्रॉफिट आने के लिए तीन मेन फैक्टर्स क्या होना चाहिए इन दिस धंधा? फ्लैगशिप टाउन हाउस में अगर 11,000 का प्रॉफिट कमाना है तो 3 मेन क्या फैक्टर होना चाहिए दैट विल ड्राइव दिस 11,433 का प्रॉफिट? सर मंथली रूम रेवेन्यू ऑफ प्रॉपर्टी। बताओ ना कितना होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम क्या होना चाहिए। 3 मेन फैक्टर्स कितना होना चाहिए? सर 3 मेन फैक्टर्स मेरे को जो दिख रहे हैं वो ये है कि सबसे पहली है मंथली रूम रेवेन्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी MIC सेल्स, उसके बाद दिस मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सो सर ये 3 जो है इसमें सबसे ज्यादा फिगर्स हैं इनके। ठीक है, मंथली रूम रेवेन्यू ऑफ प्रॉपर्टी ये होना चाहिए। और क्या बताया? सर MIC सेल्स, मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशंस के लिए जो वो सेल करते थे, ओके। सो उससे $39,409 का रेवेन्यू जनरेट होता था। 39,000 इज द टोटल मंथली रेवेन्यू यार, ठीक से देखो। ओ सॉरी सर सर एक्चुअली वो वहां पे लाइन नहीं है तो आई कांट। सर टोटल मंथली रेवेन्यू 3 चीजों को मिला के आया है, वही मंथली रूम रेवेन्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मंथली एंसिलरी रेवेन्यू एंड MIC सेल्स। ठीक है। आंसर उसके बाद उसमें कॉस्ट डिडक्ट कर रखी है सबकी, स्टाफ सैलरी कॉस्ट, फूड कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, ब्रेकफास्ट कॉस्ट एक्सेट्रा। सो जो मंथली का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो 20,828 आ रहा है। सर 39,409 माइनस 20,828। हेलो, हाँ बोलो बोलते जाओ। यस सर वो सर 19,000 समथिंग कुछ फिगर आएगा एंड देन उसमें से कॉस्ट और टैक्स हटाएंगे तो 11,433 बचेगा। ठीक है। माइस क्या होता है? माइस सर माइस होता है सर मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस का जो कॉस्ट होता है उसको माइस कहते हैं।